So now for class 10th, after discussing linear equations, now we are here to solve few problems that were asked in your board exam, right? So these are little different problems. So one by one I'll solve it, and you will practice it so that you can get a confidence, a good level of confidence in all these problems, right? So solution number 1, and this is first question: 2 by x, 3 by y, 5 by x minus 4 by y. So this, let u is equal to 1 by x and v is equal to 1 by y. We can using, although we can solve it directly, but if you want to change, you can change it. So let u is equal to 1 by x, so this will be equal to 2u and plus 3v is equal to 13, and this is 5u and minus 4v is equal to minus 2. Now either by elimination method or by substitution method you can solve it. I would like to solve this by elimination method. This is equation number first and this is second. लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय, अगर आप इन दोनों को कैंसिल करोगे ऐड करके तो आपको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारी इक्वेशन एक हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. सो इट इज अप टू यू. सो पहला मैं कोशिश करता हूँ कि पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 5 एंड सेकेंड बाय 2 and then subtracting first from second we get. ठीक है. सो अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 10u एंड प्लस 15v इज इक्वल टू 65, और अगर सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u and here it is 8v and this is equal to minus 4. Subtracting first from second, right? So first from second का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि first from second, तो इक्वेशन सेकेंड से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे. सो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, सो 10u माइनस 8v. इसको ऐसा हम कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10u plus 15v and this will be equal to first from second. So this is our second equation. So this is minus 4 and minus 65. So this is coming out to be 10u minus 8v and minus 10u minus 15v is equal to minus 69. So this gets cancelled and this is minus 23v is equal to minus 69, so v is equal to 3, and once we are getting 3, so from first we get u is equal to, we get by, और ऐसे लिखेंगे from first we can get the value of u after the substitution of v is equal to 3. देखिए 2u and plus 3 and this is 3 is equal to 13. This implies that 2 will be equal to 13 minus 9, so this is 4, so u is equal to 2. So we are getting v is equal to 3 and u equal to 2. आपने क्या assume किया था, u is equal to 1 by x. This implies that x is equal to 1 by u, so this is 1 by 2, and v is equal to 1 by u y, so this is y is equal to 1 by v, and this is 1 by 3. So x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3 is your answer.
and if you are substituting these two value in this equation, it will satisfy. You can check it. X 1 by 2, so this is 4. Y 1 by 3, so this is 9, 13. X 1 by 4, X 1 by 2, so this is 10 minus Y is 3, 12. 10 minus 12 is equal to minus 2. So you are getting the answer correctly. So this is your correct answer. So in this way we can solve question number 1, right? So now I am moving further. So for next problem, second problem is 6x plus 3y. Second, 6x plus 3y is equal to 7xy and 3x plus 9y is equal to 11xy. Now there is a problem for you. This xy को हम क्या करेंगे? तो इसमें जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका इसी फॉर्मेट में आ जाएगा. बस थोड़ी सी इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय xy we get. ठीक है. So this will be 6x 3y by xy and this is 7xy by xy. So this gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled. This implies that 6y and 3 by x is equal to 7. Equation number 3, right? So now second की हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 3x by xy plus 9y by xy and this is 11xy by xy. This gets cancelled, y and y, x and x. This implies that 3 by y and plus 9 by x is equal to 11. Equation number 4. Now again in the previous, just like in the previous example, जब हमने previous example में किया था ठीक उसी तरीके से करेंगे. हमने क्या किया था, let x is equal to 1 by u, y is equal to 1 by v. क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दिया, u is equal to 1 by x and v is equal to 1 by y. So our second equation क्या बन जाएगा, this implies that ये equation हमारा बन जाएगा 6v plus 3u is equal to 7 and this is 3v and plus 9u is equal to 11. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये v हमारा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6. क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 6th by 2 and subtracting it from 5th. 5th से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट. देखिए 6v प्लस 3u. ठीक है. क्या करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, ये 6v प्लस 18u इज इक्वल टू 22. यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आएगा. इसको आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से. यहां आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया. ये कितना आएगा, -15u एंड दिस विल बी इक्वल टू -15. सो u इज इक्वल टू 1. ये आपका आ जाएगा. अगर आप इसको ऐसे ना करके और इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो कि 6b सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 5 from 6, तो 3u and minus 3v and plus 9u is equal to 7 minus 11. So this implies that 6v plus 3u and minus 6v and 18u minus 6v and minus 18u is equal to 22. 7 minus 22, right? Minus 15. So this gets cancelled. This is minus 15u is equal to minus 15. So u is equal to 1. So this way also we can say. ठीक है. 5th से हमने माइनस कर दिया तो हमारे को u की वैल्यू मिल गई. अब जब आपको u की वैल्यू मिल गई
तो अब क्या करेंगे, अब आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1 इन फिफ्थ, वी गेट, फिफ्थ इक्वेशन में रख दीजिए आप, क्या मिलेगा, 6v प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, सो v इज इक्वल टू 4, 7 minus 3 by 6, so this is 4 by 6, so v is equal to 2 by 3, right? So v is 3 by 2 and u is equal to 1. So what were our assumption was x is equal to 1 by u, right? So what we can write here, since x is equal to 1 by u, this implies that x is equal to 1 by 1, so 1, x की वैल्यू आपको 1 मिल गई, एंड y is equal to 1 by v और v is equal to 1 by y, तो हम क्या लिख सकते हैं, v is equal to 1 by y, this implies that y is equal to 1 by v and this is 1 by 2 by 3, so this is equal to 3 by 2, so x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 by 2 हमारी आ जाएगी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। So our next problem here, this is 5 by x minus 1 and plus 1 by y minus 2, this problem third, and 6 by x minus 1 and minus 3 by y minus 2, यहाँ पे हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, let 1 by x minus 1 is equal to u and 1 by y minus 2 is equal to v. So what we can write here, we can write here 5u and plus v is equal to 2 and this is 6u and minus 3v is equal to 1. तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर को 1 कर लें, इसको हम 2 कर लें, सो मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 and adding with second we get, तो फर्स्ट को हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा, 15u एंड प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और ये क्या मिलेगा 6u एंड माइनस 3v इज इक्वल टू 1, सो दिस इज माइनस प्लस, सिर्फ ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, ये कितना होगा 21u इज इक्वल टू 7, सो u इज इक्वल टू 7 by 21 and this is equal to 1 by 3, right? So u की वैल्यू आपकी 1 by 3 आ गई। नाउ क्या लिखेंगे, substituting the value of u is equal to 1 by 3 in second we get, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी में रख सकते हैं, सेकंड में रख दिया हमने, तो 6, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, सो 6 इंटू 1 बाई 3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 3 2 ज़ा 6, राइट? इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो 3v इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाए और 2 को इधर लेकर आए, 1 को इधर 1, सो v इज इक्वल टू 1 बाई 3। सो नाउ अब क्या करेंगे, हमारे पास सिंस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू माना है हमने, एंड दिस u इज इक्वल टू 1 बाई 3, सो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सो x विल भी कितना होगा 4, राइट? v को माना क्या 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू कितनी है 1 बाई 3, दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो 3 विल बी इक्वल टू y माइनस 2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ से कर दो और इसको यहाँ कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो y विल बी इक्वल टू 5, सो आंसर इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। This is its answer, x equal to 4 and y is equal to 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, 3 1 by 3 and this is 4 4 3 1 by 3 6 2 3, right? So this is the way to solve. Now next problem,
fourth problem. Fourth is the same case, 15 by x minus y and 22 by x plus y, and this is 5. 40 by x minus y and plus 55 by x plus y is equal to 13. x minus y 1 by x minus y 1 by x plus y यहाँ है, 1 by x minus y यहाँ है, 1 by x plus y यहाँ है. क्या करेंगे हम, लिखेंगे लेट u is equal to 1 by x minus y and v is equal to 1 by x plus y. तो हम क्या लिखेंगे, 15u and plus 22v will be equal to 5, equation number 1. 40u plus 55v is equal to 13, equation number 2. राइट कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये देखें अब कि इन दोनों में से हमें किसी को एक को कैंसिल करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा एक कैंसिल हो जाए. तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और सॉरी इसको 5 से, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो v कैंसिल हो जाएगा. क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 5 and second by 2 and then subtracting second from first we get. मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 75u and plus 110v and 5 5s are 25. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको, क्या होगा, 80u एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110v एंड दिस विल बी इक्वल टू 36 और सॉरी 26. ठीक, माइनस माइनस माइनस, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से हम सेकेंड को माइनस कर रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5u, ये कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, इज इक्वल टू -1. सो u इज इक्वल टू 1 by 5, राइट. सो फ्रॉम फर्स्ट, since u is equal to 1 by 5, this implies that 15 into 1 by 5 plus 22v is equal to 5. So 22v is equal to 5 3s are 15. So 5 minus 3 is equal to 2. So v is equal to 2 by 22 and this is coming out to be 1 by 11. Right? So 1 by 11 and 1 by 5. आइए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको यहाँ पर. अब हम इस पूरे को रब कर देते हैं. u की वैल्यू आ गई 1 by 5. देखिए, since u is equal to 1 by 5 and this is equal to 1 by x minus y and v is equal to 1 by 11 and this is equal to 1 by x plus y. आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो नाउ जस्ट कंसंट्रेट हियर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. अभी क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए, इसको 4 कर लीजिए. एडिंग 3 and 4 क्योंकि सेम है और ये पॉजिटिव निगेटिव ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा. वी गेट, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज 11. ऐड कर दिए, कैंसिल, दिस इज प्लस प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 11 16. सो x इज इक्वल टू 8 एंड सिंस x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम third we can write y x minus y equal to 5. So y is equal to x minus 5 and 8 minus 5 is equal to 3. So x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई. क्या है आपके पास, दिस वाज द x equal to 8 and y is equal to 3. This is your answer. So this completes your all 4 problems, right? Fine. So now another problem, and this question number 5th we have to solve. ऐसे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा प्रॉब्लम है, लेकिन है बहुत ही आसान.
और x और y यहाँ अलग अलग है, तो आप इस x y को भी अलग अलग कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. सो ax and this is a plus by and this will be equal to a square minus 2ab minus b square. इसको भी अलग अलग कर लीजिए. सो दिस इज a plus b into x and a plus b into y and this is a square plus b square. इस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 2 किसी से कोई से मल्टीप्लाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्टिंग second from first we get. ठीक है. So first equation is our a minus b into x and plus a plus b into y and this is equal to a square minus 2ab and minus b square and this is second from first. So a plus b into x and plus a plus b into y is equal to a square and plus बी स्क्वायर. सो माइनस कर दीजिए आप इसका. दिस इज माइनस, तो क्या होगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू एक्स एंड माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स. राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab एंड दिस इज माइनस 2b स्क्वायर. माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे. यहाँ पर x आप कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी एंड माइनस ए माइनस बी कर दीजिए. यहाँ माइनस 2ab एंड माइनस 2b स्क्वायर कर दीजिए. a और a कैंसिल हो गया. दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2b एंड यहाँ से 2b कॉमन ले लीजिए यहाँ से. सो ये आ गया a एंड ये आ गया b. राइट. सो 2b एंड 2b कैंसिल. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस b. ये आपके x की वैल्यू आ गई. ठीक है. सो x इज इक्वल टू a प्लस b. तो व्हाट विल बी y? सो फ्रॉम सेकेंड लिख सकते हैं. फ्रॉम सेकेंड क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू एक्स. एक्स के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर. तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी एंड प्लस a प्लस बी इंटू वाई एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस विल बी इक्वल प्लस a प्लस बी इंटू वाई एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस गेट्स कैंसल्ड. सो y विल बी इक्वल टू minus 2ab and divided by a plus b. So this is your answer. So x is equal to x we are getting here. X is equal to a plus b and y is equal to minus 2ab by a plus b. So this is your answer. This gets your answer. Right? Fine. Next problem we are moving. So next is sixth question is again simple, very simple. So 6 is here. First we will try to bring it in a simple form. by a is equal to a plus b. So ab is the LCM. ab अगर LCM ले लें हम तो क्या लिखेंगे हम? This is ab, b and b. This is a square x minus b square y and this will be equal to a plus b. So this can be written as ax square and minus b square y is equal to a square b plus b square a. Equation number 1. Equation number 2. ax minus by is equal to 2ab. This is equation number 2. So what we write here? यहाँ लिखेंगे. इसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय a and subtracting it from first we get. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर वाई एंड दिस इज a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर a. और ये हम क्या करेंगे? a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b. ये आपको माइनस करना है. दिस इज माइनस एंड प्लस एंड माइनस. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट से हम अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे
है ना, सेकंड को, फर्स्ट से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं सेकंड को, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, ये तो होगा ही होगा, इसको हम अगर पहले सॉल्व करते हैं हम इसको, दिस गेट्स कैंसल्ड, सो दिस इज ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a square b and plus minus minus, so this is b square a minus a square b, so y will be equal to a square ab square minus a square b and divided by ab minus b square. So what we can get here, अगर हम यहाँ से b ab कॉमन ले लें, so this will be equal to b minus a and divided by, अगर यहाँ से हम b कॉमन ले लें, so this will be equal to minus a minus b and this gets cancelled, b and b gets cancelled, so this is minus 1, so y is equal to minus a, and if y is equal to minus a, हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व लिख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in first, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या कहता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, सो y की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज a एंड a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, so a स्क्वायर x and plus b स्क्वायर a will be equal to a स्क्वायर b and plus b स्क्वायर a. So this gets cancelled, a square and a square gets cancelled, so x is equal to b. So answer is here x is equal to b and y is equal to minus a. This is your answer. अब सबसे डिफरेंट और टिपिकल प्रॉब्लम ये है, और यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, अगर थोड़ी समझदारी से काम लेंगे तो ये प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको मैंने इसीलिए VBI लिख दिया है, इसकी ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, तो इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों को एक बार घटा दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेवन्थ प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लिखें यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 37x एंड प्लस 43y इज इक्वल टू 123 एंड 43x एंड प्लस 37y इज इक्वल टू 117। एक बार हम ये, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या होगा जब दोनों को हम ऐड कर देंगे, 37x एंड प्लस 43y इज इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, दोनों को अगर हम ऐड करें, सो व्हाट वी गेट, 80x and plus 80y is equal to, this is 0, so x plus y is equal to 3, equation number 3। subtracting ऐसे लिख दें, subtracting second from first we get, first क्या है, 37x and plus 43y is equal to 123, second from first, so first और second क्या है, 43x plus 37y is equal to 117, ये हम माइनस कर दें तो क्या होगा, minus 6x and plus 6y and this will be equal to 6, so what we can get, minus x plus y is equal to 1, equation number 4, right। अब क्या लिखेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, 3 और 4 को हम ऐड कर दें, क्या मिलेगा आपको, देखिए तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड कर दें, दिस गेट्स कैंसिल्ड, 2y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड या फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा, थर्ड से अगर हम थर्ड इक्वेशन में चले जाए, सिंस y इज इक्वल टू 2, so x will be equal to y minus 3, sorry, x is equal to 3 minus y, so 3 minus 2 and this is equal to 1, तो हमारे को वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी मिल गई, x is equal to 1 and y is equal to 2, this is our answer for this question।
सो दिस इज द वे, यानी कि कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज नथिंग बिग थिंग. ओके, थैंक यू.